Hello children, hope all of us are excited to begin this new session. Now we will begin with the topic nutrition in plants, and the things we will learn are modes of nutrition, autotrophic nutrition in plants, heterotrophic nutrition in plants, and replenishment of nutrients in the soil. Now all living things need energy for carrying out their daily activities. They get this required energy from the food they eat. Humans and animals get their food from plants or from smaller animals. But how do plants get their food? Let us discuss in this chapter. तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं जिनमें जान है, जो ज़िंदा हैं, उन सबको अपनी डेली एक्टिविटीज़ करने के लिए बहुत सारी एनर्जी की नीड होती है. ये एनर्जी मिलती है खाना खाने से. अब जितने भी ह्यूमंस और एनिमल्स हैं उनको अपना खाना या तो प्लांट्स या फिर छोटे जानवरों से मिलता है. लेकिन प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं या कैसे लेते हैं, हम इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे. नाउ वी विल बिगिन विद modes of nutrition. So the process of taking food and its utilization by the body is called nutrition. There are two modes of nutrition. जिस प्रोसेस से कोई भी एक लिविंग बॉडी अपने अंदर खाना लेती है और उसको यूटिलाइज करती है अपने सारे फंक्शंस के लिए, इस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहा जाता है. एंड देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. सो द फर्स्ट वन इज autotrophic. Now the mode of nutrition in which an organism makes its own food is called autotrophic nutrition. The organisms that follow this mode of nutrition are called autotrophs. Auto means self, troph means nutrition. So green plants are autotrophs. हर वो organism जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है और उनके इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है. Next we have the heterotrophic. So the mode of nutrition in which an organism does not make its food by its own but depends on other organisms for its food requirement is called heterotrophic nutrition. Hetero means other and troph means nutrition. So the organisms that follow this mode of nutrition are called heterotrophs. Animals and human beings are heterotrophs because they depend on plants and other animals for their food. तो हर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो या तो प्लांट्स या छोटे जानवरों पर डिपेंड करते हैं अपने खाने की रिक्वायरमेंट के लिए, उनको हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है. और इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है. नाउ लेट अस लुक एट autotrophic nutrition in plants. Now green plants are called autotrophs because they can prepare their food from raw material present in their surroundings. Green plants are also called producers. They produce their food by the process of photosynthesis. So let us discuss about photosynthesis. तो हर वो green plant जो अपना खाना photosynthesis के ज़रिए खुद बनाता है उसको autotrophic प्लांट कहा जाता है या उसके उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है. लेट अस नाउ लुक एट फोटोसिंथेसिस. वो प्रोसेस जिससे कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं उसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है. फोटो का मतलब है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है बनाना या बिल्ड करना. प्लांट्स की जो ग्रीन पत्तियां हैं उनको प्लांट्स का फूड फैक्ट्री कहा जाता है. इन ग्रीन पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल होता है. अब ये ग्रीन पत्तियां क्या करती हैं कि ये अपने एनवायरनमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और फिर जो रूट्स ने पानी और मिनरल्स को अब्जॉर्ब किया होता है वो रूट्स पत्तियों तक पहुंचाते हैं. फिर सनलाइट की प्रेजेंस में ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और मिनरल्स को यूज़ करके अपना खाना ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं. साथ में इनके एक ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट होता है जो बनता है जिसको फिर ये अपने एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देते हैं. अब ये सारा प्रोसेस जो है ग्रीन पत्तियों की क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है. तो इस सारे प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस. सो इफ़ वी लुक एट दिस रिएक्शन हियर, carbon dioxide is taken from the air, water which is taken from the soil, plus sunlight in the presence of chlorophyll. What is formed? Glucose, which is the food stored in the plants, plus oxygen which is released in the atmosphere. Therefore, the process of converting carbon dioxide and water into glucose and oxygen in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. Now, what are the necessary conditions for photosynthesis?
सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होना ज़रूरी है और जो ग्रीन पत्तियां हैं उनके अंदर ग्रीन पिगमेंट जिसे क्लोरोफिल कहते हैं वो होना ज़रूरी है, पानी बहुत ज़रूरी है और सनलाइट की प्रेजेंस भी ज़रूरी है। नाउ लेट अस लुक एट द रोल ऑफ लीव्स इन फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस प्लांट की लीव्स में होता है, तो प्लांट की लीव्स को सारा रॉ मटेरियल चाहिए। अब प्लांट के जो रूट्स हैं वो पानी को अब्जॉर्ब करते हैं। पूरे प्लांट के अंदर रूट से लेकर के स्टेम से लेकर के जहाँ पे लीव्स हैं वहाँ तक पहुँचाने सामान पहुँचाने के लिए एक पाइप का नेटवर्क होता है जिसको कि जाइलम कहा जाता है। इन वेसल्स के थ्रू जितना भी रूट्स ने पानी मिनरल वगैरह अब्जॉर्ब किया होता है वो स्टेम से होते होते लीव्स तक पहुंचाया जाता है। जो प्लांट की हरी पत्तियां हैं इनके अंदर बहुत छोटे छोटे से सेल्स मौजूद होते हैं। इन छोटे छोटे सेल्स को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। इनके अंदर वो ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से जो हमारी पत्तियां हैं वो ग्रीन कलर की हमें नजर आती हैं। क्लोरोफिल जो है ये सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है और इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब जो हरी पत्तियां हैं इनकी या जो भी लीव्स हैं इनकी जो नीचे वाली साइड होती है इनमें बहुत छोटी छोटी सी ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। इन स्टोमेटा के आसपास जो है ये गार्ड सेल्स होते हैं। अब ये गार्ड सेल्स ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं और इन्हीं के थ्रू लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर करती है और जब पत्तियां खाना बना देती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती हैं तो उसको वो इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू लीफ के बाहर एनवायरनमेंट तक पहुंचाती हैं। अब जो पत्तियों में खाना बन चुका है इस खाने को ग्लूकोज के फॉर्म में जो ये खाना है इसको पूरे प्लांट में फ्लोएम जो कि दूसरे वेसल्स हैं उनके थ्रू पहुंचाया जाता है। लेट अस डू इट। To demonstrate the presence of starch in a healthy leaf, materials required: a green leaf, alcohol, burner, test tube, beaker, forceps, water, iodine solution. Now take a leaf and place it in a test tube containing alcohol. Place this test tube in the beaker containing water. Now place the complete setup over the burner and let it boil till the green color of the leaf disappears. Now the test tube containing alcohol should not be heated directly on the burner as it is inflammable. Take the leaf out of the test tube with the help of forceps and wash it in water. Put a few drops of iodine solution on the leaf. You will observe that the leaf turns blue-black in color. Now it confirms the presence of starch in the leaf. Now, it is a fact all the living organisms are made from tiny structural units called cells. Cells are so tiny that they can only be seen under a microscope. The cell is enclosed by a thin outer boundary called the cell membrane. Most of the cells have a distinct centrally located spherical structure called the nucleus. The nucleus is surrounded by a jelly-like substance called cytoplasm. Some organisms are made of only one cell. Now these organisms are called unicellular organisms and the organisms which have more than one cell are called multicellular organisms. Now let us look at the importance of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं अपने खाने की रिक्वायरमेंट के लिए और जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ही तो खाना बनाते हैं। फिर फोटोसिंथेसिस होने पर जो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है हवा में वो बाकी के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ को सपोर्ट करती है और फोटोसिंथेसिस के टाइम में प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड बाकी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिलीज़ करते हैं जब उनकी रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस जो है ये फोटोसिंथेसिस की वजह से हमारे नेचर में मेंटेन रहता है। Thus photosynthesis is a unique process which is very important for the existence of life on the earth. Now think, why do plants get de-starched when kept in continuous darkness for about 48 hours? Now let us look at photosynthesis in non-green plants. वो प्लांट्स की पत्तियां जो हमें हरे रंग की नज़र नहीं आती क्योंकि उनमें हमें लाल, पीला, ऑरेंज इस तरह के कलर्स नज़र आते हैं, उनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन क्योंकि दूसरे कलर के पिगमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो इस क्लोरोफिल को मास्क कर लेते हैं या छुपा लेते हैं। तो इन पत्तियों के अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है। एग्जाम्पल क्या है? क्रोटन प्लांट जिसकी रंग बिरंगी हमें पत्तियाँ नज़र आती हैं। नाउ लेट अस लुक एट फोटोसिंथेसिस इन एल्गी।
जब रुके हुए पानी के ऊपर अगर आपको काई की तरह हरी हरी सी जो स्लाइमी सा सब्सटेंस नज़र आता है वो एल्गी है। अब एल्गी का ये ग्रीन कलर जो है ये क्लोरोफिल की वजह से है, तो इसीलिए क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल है, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है और एल्गी भी अपना खाना खुद ही बनाते हैं। नाउ लेट अस लुक एट synthesis of food other than carbohydrates by plants. Now glucose is synthesized by the plants through the process of photosynthesis, which is the simplest form of carbohydrate and contains carbon, hydrogen and oxygen. It is stored in the plant as starch, a complex insoluble form of carbohydrate. तो ये जो ग्लूकोज फॉर्म होता है इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, ये प्लांट्स बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम में और इसको अपने अंदर स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। Now along with carbohydrates, plants also synthesize other components of food such as proteins and fats. Now proteins are nitrogenous substances which contain nitrogen. Although synthesis of proteins and fats from the glucose is quite complex. Now the required nitrogen for the components is derived from the soil. अब ये जो carbohydrates हैं इनके साथ साथ ये plants अपने अंदर proteins और fats के components जो है ना उनको भी synthesize करते हैं, बनाते हैं और store करके रखते हैं। अब proteins बनाने के लिए नाइट्रोजन की नीड पड़ती है। अब ये जो प्रोटीन्स और फैट्स हैं ये ग्लूकोज से थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं ये वाले मटेरियल, और इनके लिए जो नाइट्रोजन चाहिए होता है वो प्लांट्स सॉइल से लेते हैं। नाउ सॉइल इज़ रिप्लेनिश्ड विद नाइट्रोजन एंड अदर इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेज एज फॉलोड। कई बार क्या होता है कि सॉइल में जो फार्मर्स हैं वो नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम सल्फेट वगैरह से मिक्स जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको डालते हैं क्योंकि इनके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा होती है। ये फर्टिलाइजर्स पानी में अच्छे से घुल जाते हैं और इस वजह से ये जो रूट्स हैं पानी के साथ साथ इन सब्सटेंसेस को अब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल जाता है। फिर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि लेग्यूमिनस प्लांट्स, फॉर एग्जांपल ग्राम एंड पी, इनके जो रूट्स हैं, रूट्स में इनके राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉइल में मिक्स कर देता है। नाउ लेट अस लुक एट द हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब वो प्लांट्स जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, जिन्हें हम नॉन ग्रीन प्लांट्स कहते हैं, ये बाकी के ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, तो इन प्लांट्स को कहा जाता है कि इनका हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 4 तरह के होते हैं: सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक एंड इंसेक्टिवोरस। सो लेट अस बिगिन विद द सैप्रोफिटिक। अब इसमें क्या है कि प्लांट अपनी जितनी भी उसको न्यूट्रिशन चाहिए वो डेड और डिकेइंग मैटर से अपने अंदर अब्जॉर्ब करता है, इसको सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ब्रेड के ऊपर जो हमें मोल्ड नजर आता है दैट इज एक्चुअली अ फंजाई। फिर जो मशरूम है या फिर कुछ ऐसे बैक्टीरिया जैसे कि लैक्टोबैसिलस या फिर एसिटोबैक्टर, ये एग्जाम्पल्स हैं सैप्रोट्रॉफ्स के। नाउ सैप्रोट्रॉफ्स सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट देम इनटू अ सॉल्यूशन, देन दे अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। कई बार बारिशों के मौसम में क्या होता है, हमारे लेदर के बैग्स या शूज़ हैं उनके ऊपर हमें ना कुछ एक वाइट से पैच बनते हुए नज़र आते हैं, ये फंजाई होते हैं। नाउ डू यू नो वेयर डू द फंजाई इन ब्रेड, वुड एंड लेदर कम फ्रॉम? Spores of the fungi are present in the air. When they land on wet and warm things, they germinate and grow. So these fungi, they spoil the things on which they grow. Fungi के जो spores हैं वो हवा में सब जगह हैं। अगर किसी चीज़ के ऊपर थोड़ी सी नमी आ जाए, थोड़ी सी गर्माहट आ जाए, तो ये spores उसके ऊपर जा कर के germinate करते हैं और grow करते हैं। Now next is our parasitic. Now this type of nutrition in which plants derive their nutrition from other living organisms is called parasitic nutrition. अब इसमें क्या होता है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म अपना उसको जो न्यूट्रिशन चाहिए वो किसी और प्लांट से लेता है। कई बार क्या होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना जो खुद नहीं बना सकते, वो क्या करते हैं, वो ग्रीन प्लांट के ऊपर लग जाते हैं जिसको कि होस्ट प्लांट कहा जाता है, और इनकी जो रूट्स होती हैं वो उसके अंदर जाकर के अपना न्यूट्रिशन उस ग्रीन प्लांट से अब्जॉर्ब करती हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे आते हैं total parasitic plants. The plants which totally depend on host plants for their nutrition are called total parasites. For example, Cuscuta or Amarbale is a total stem parasite while Rafflesia is a total root parasite. Next we have partial
Parasitic plants. So the parasitic plants which can make their food by photosynthesis but obtain raw materials, water and minerals from the host plant are called partial parasitic plants. For example, mistletoe is a partial parasitic plant because they make their food themselves but get water and minerals from the host plant. Then sandalwood is another example of partial parasitic plant. Now parasitic plants harm the host plant to some extent by slowing down its growth and sometimes causing too much of damage. Next we have symbiotic. Now the type of nutrition in which two plants live together and share food and other resources by providing mutual benefits is called symbiotic nutrition. Now the plants which live together are called symbionts or symbiotic plants and the relationship is called symbiotic relationship. तो यहाँ symbiotic nutrition में क्या होता है कि दो plants एक दूसरे के साथ रहते हैं और आपस में कुछ उनके benefits share करते हैं जैसे खाना या फिर बाकी के resources. तो इस तरह के nutrition को symbiotic nutrition कहा जाता है. Lichens इसका एक अच्छा example है. algae जो है वो ऑटोट्रॉफ्स हैं और जो फंगस हैं वो सैप्रोफाइट हैं. तो ये एक दूसरे के ऊपर अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स के लिए डिपेंड करते हैं. जो फंगस है वो पानी और मिनरल सप्लाई करता है algae को और algae जो है क्योंकि उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है तो वो प्रिपेयर्ड फूड जो है वो फंगस को सप्लाई करता है. नेक्स्ट वी हैव इंसेक्टिवोरस. The mode of nutrition in which green plants make their own food depend on insects. For nitrogenous food is called insectivorous nutrition and the green plants in which this type of nutrition is found are called insectivorous plants. तो कुछ ऐसे plants हैं जिनको बाकी के nutrients तो मिल जाते हैं लेकिन उनको नाइट्रोजन नहीं मिलता. तो वो क्या करते हैं कि जो आसपास के छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं उनको खाते हैं ताकि उनको जो नाइट्रोजन चाहिए वो मिल सके. तो ऐसे प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा जाता है. इनमें ट्रॉपिकल पिचर प्लांट या फिर जो वीनस फ्लाई ट्रैप है या फिर सन ड्यूड जो हैं ये एग्जाम्पल्स हैं. ये क्या करते हैं कि ये आधा न्यूट्रिशन तो सॉइल से लेते हैं या एटमॉस्फेयर से लेते हैं लेकिन जो इनको नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है वो स्मॉल इंसेक्ट्स को खा करके इनको मिलती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ पिचर प्लांट. In a pitcher plant, the leaves are modified into a pitcher-like structure. अगर आप ये इमेज देखेंगे तो यहाँ पे पत्तियाँ थोड़ी पिक्चर की तरह लगती हैं और इनके ऊपर एक लिड भी होती है. इनके अंदर बहुत ही बारीक बारीक से बाल जैसे स्ट्रक्चर्स उगे होते हैं. अब होता क्या है कि अगर कोई इंसेक्ट इनकी लिड पे आकर के या ऊपर मुंह पे आकर के बैठता है तो इनकी लिड बंद हो जाती है और जो इंसेक्ट है वो इस प्लांट के या लीफ के अंदर के जो बाल हैं उनमें अटक जाता है. फिर ये लीव्स डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करती हैं और धीरे धीरे ये पूरा गल जाता है और ये इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है. नेक्स्ट इज आर वीनस फ्लाई ट्रैप. If you can look at the leaves in the image here, in Venus flytrap, the leaves consist of two lobes. The inner surface has short stiff hair and is reddish in color to attract insects. The moment an insect touches the hair, the lobes mesh up together to trap it. Now let us look at replenishment of nutrients in the soil. अब प्लांट्स को जो अपने न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सॉइल से मिलते हैं. अब ईयर आफ्टर ईयर उसी सॉइल में इतने सारे क्रॉप्स ग्रो करे जाते हैं और प्लांट्स को जो न्यूट्रिशन चाहिए या जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनकी डेफिशिएंसी हो सकती है. अब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स को चाहिए. इनके साथ साथ आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक भी कुछ कुछ अमाउंट में चाहिए होते हैं. अब सॉइल को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है कि जो फार्मर्स हैं अपनी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को टाइमली ऐड करते रहें. अब ये कैसे किया जा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल बाय यूजिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स जो हैं ये नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस में रिच होते हैं इसलिए जब इनको सॉइल में ऐड किया जाता है तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है. देन बाय ग्रोइंग लेग्यूमिनस प्लांट्स. कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो जिन्हें हम लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं. उनको जब हम ग्रो करते हैं तो सॉइल के अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स अपने आप से बढ़ जाते हैं क्योंकि ये वाले प्लांट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्यूबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके सॉइल में ऐड कर देते हैं. देन बाय क्रॉप रोटेशन. कई बार क्या होता है कि अगर आप एक ही फार्म में एक सीज़न में एक तरह के क्रॉप्स ग्रो करें और दूसरे सीज़न में दूसरे वाले क्रॉप्स ग्रो करें तो फील्ड के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपने आप रिप्लेनिश होते रहते हैं. नाउ लेट अस टेक अ क्विक रिकैप.
The process of taking food and its utilization by the body is called nutrition. Nutrition is of two types, autotrophic and heterotrophic. The mode of nutrition in which organisms make their own food is called autotrophic nutrition. Green plants are autotrophs because they prepare their food by photosynthesis. In photosynthesis, green plants use carbon dioxide and water to make their food in the presence of sunlight and chlorophyll. Mode of nutrition in which organisms depend upon other organisms for their food is called heterotrophic nutrition. Four kinds of heterotrophic nutrition is found in plants: saprophytic, parasitic, symbiotic and insectivorous. In saprophytic nutrition, plants make their food from dead and decayed organic matter. In parasitic nutrition, plants totally or partially depend upon other plants for their nutrition. In symbiotic nutrition, two plants live together and share food and shelter. Some plants depend upon insects for nitrogenous food. These plants are called insectivorous plants. The nutrients in the soil can be replenished by adding fertilizers and manure. So I hope that this chapter is clear to all, and answering questions based on this chapter will now be easy.